વડોદરા ખાતે આવેલા ઈએમઈ સર્કલ પાસે જે રીતે એક નવું સ્મારકનું આજે લોકાર્પણ થઈ રહ્યું છે, ત્યારે તમામ જે આર્મીના જવાનો છે તે અહીંયા ઉપસ્થિત છે. ખાસ કરીને ઈએમઈ જે આ સર્કલ છે ત્યાં ઈએમઈ જે કેમ્પસ આવ્યું છે તેના આસપાસ જે રીતે ઇન્ડિયન આર્મીના જે જવાનો છે તેમનું અહીંયા આજે એક સ્મારકનું લોકાર્પણ કરવામાં આવી રહ્યું છે ને પૂજા વિધિ સાથે આ સ્મારક નું લોકાર્પણ કરવામાં આવશે. જે રીતે અહીંયા સંપૂર્ણ વિધિસર આનું પૂજન કરવામાં આવ્યું. તમામ ઉચ્ચ અધિકારીઓ આર્મીના જવાનો અહીંયા ઉપસ્થિત રહ્યા. તેમના ઉપસ્થિતિમાં જે રીતે અહીંયા લોકાર્પણ કરવામાં આવી રહ્યું છે, તમામ આર્મીના જવાનો અહીંયા ઉપસ્થિત છે. ઈએમઈના તમામ જવાનો તેમની ઉપસ્થિતિમાં આ સંપૂર્ણ એકબીજાને મોઢું મીઠું કરીને તેમના દ્વારા આજે સર્કલનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું છે. આર્મી જવાનનું એક સ્કલ્પચર મૂકીને તેમના દ્વારા અહીંયા શરૂઆત કરવામાં આવી. ખાસ કરીને જે રીતે આજે ઈએમઈ સર્કલ ખાતે આનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું છે ને જે રીતે આપ ઈએમઈ સર્કલ પાસે જે સ્કલ્પચર જોઈ શકો છો, ઈએમઈ જે ખાસ કરીને ઇન્ડિયન આર્મી જે હંમેશા દેશની સુરક્ષા માટે તત્પર હોય છે અને હાલ તેમના દ્વારા જે રીતની અહીંયા સંપૂર્ણ આર્મીના ઉચ્ચ અધિકારીઓ, ઈએમઆઈના જે ઉચ્ચ અધિકારીઓ છે તેમના ઉપસ્થિતિમાં આ સ્મારકનું આજે લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું છે. તમામ રિટાયર હોય કે ઓન ડ્યુટી તમામ જે આર્મી ઓફિસર્સ છે તે તમામની ઉપસ્થિતિમાં આજે સ્મારકનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું. ભારતની સુરક્ષા માટે જ્યારે આર્મી, નેવી, એરફોર્સ હંમેશા તત્પર હોય છે, જ્યારે આપણે શાંતિપૂર્વક ઘરે આરામથી રહેતા હોય છે ત્યારે આપણી માટે હંમેશા આપણા જીવને બચાવવા માટેનો જે પ્રયત્ન કરતા હોય છે તેમની માટે આજે ઈએમઈ સર્કલ ખાતે એક સ્મારકની શરૂઆત કરવામાં આવી અને સ્મારકનું આજે લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું છે તેમના દ્વારા. તમામ ઈએમઈનો સ્ટાફ, ઉચ્ચ અધિકારીઓ, રિટાયર ઓફિસર તમામની ઉપસ્થિતિમાં આજે ઈએમઈ સર્કલ પાસે જે સ્મારકનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું છે. તમામ ઉપસ્થિત છે. તમામ ઘણા ઉત્સાહિત છે, કારણ કે જે રીતે વડોદરા એક કલા અને સંસ્કારી નગરી છે, જ્યાં તમામ જે સર્કલ હોય છે ત્યાં વિવિધ સ્મારકોને જે સ્કલ્પચર મૂકવામાં આવ્યા છે, ત્યારે જ્યારે ભારત દેશની સેવા માટે, રક્ષા માટે વડોદરાના પણ કેટલા જવાનો હંમેશા જતા હોય છે અને ઘણા શહીદો પણ થયા છે. તે માટે આજે જે રીતે એક આર્મીનું સ્મારક બનાવવામાં આવ્યું છે, એક સુંદર સ્મારક જે ઈએમઈ સર્કલ પાસે બનાવવામાં આવ્યું ને હવે આવી જાઓ, ચલો સર. ઇન્ડિયન આર્મીના સ્મારક આજે ઈએમઈ સર્કલ ખાતે બનાવવામાં આવ્યું છે. મેં જે રીતે આની આજે
શરૂઆત થઈ છે. એક સુંદર સ્કલ્પચર ઈએમઈ સર્કલ ખાતે બનાવવામાં આવ્યું છે, જે ઈએમઈના ઉચ્ચ અધિકારીઓ પણ અહીંયા ઉપસ્થિત છે. તેમની સાથે પણ વાત કરવાનો આપણે પ્રયત્ન કરીશું કે જે રીતે આજે સ્મારક બનાવવામાં આવ્યું છે. जी, जे रीते आज ईएमई सर्कल का स्मारक बनाने में आया है, किस तरह का स्मारक है और क्या कहें? आज ये जो फतेहगंज विस्तार के अंदर जो ईएमई सर्कल का पुनर्निर्माण किया गया है, ये जो यहाँ पर सारे लोग जो एकत्रित हुए जो आप देख रहे हैं, आज इनके सामने देखेंगे जिस प्रकार से ये स्मारक बनाया गया है. ये स्मारक IOCL का सानिध्य और वडोदरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा इस स्मारक में उनका सारे लोग का सहयोग है. और इस सहयोग के कारण आज ये जो स्मारक है ये बड़ौदा शहर के लिए एक प्रेरणादायी होगा. जिस प्रकार से आज सेना के अंदर जो जवान जेसीओ ऑफिसर रैंक में जो लोग भर्ती होने जा रहे हैं, इस स्मारक को देख करके उनको एक प्रकार का मोटिवेशन लेवल उनको मिलेगा. और इस स्मारक के अंदर आप जहां देख रहे हैं कि हमारा जो जवान है वो जवान एक बाएं हाथ में अपना वेपन को उठाए हुए हैं और दाहिने हाथ के अंदर ग्लोब है, यानी कि दुनिया जो है अपनी मुट्ठी में करके बैठे हुए हैं. तो इस प्रकार से ये एक यहाँ डिपेक्ट करता है कि हमारा जो ईएमई है, ईएमई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स का जो प्रतीक है कि बाएं हाथ में जो वेपन है वो मैकेनिकल का प्रतीक है, ऊपर जो ग्लोब है वो इंजीनियरिंग का प्रतीक है. तो इस प्रकार से ये जो स्मारक है हमारे देश के लिए नहीं, वडोदरा शहर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. नीचे आप देखेंगे वहाँ पे जो दक्षिणामूर्ति टेम्पल जो दिया है, जो भारतवर्ष से एक अलग प्रकार का एक यूनिक टाइप का मंदिर है, जिस मंदिर के अंदर 5 धर्मों को मिला करके सर्वधर्म स्थल बनाया गया है. इस सर्वधर्म स्थल के अंदर जहाँ देखेंगे कोई मंदिर में जाओगे तो सिर्फ आपको हिंदू धर्म के बारे में बताया जाएगा, लेकिन यहाँ जो है आप देखेंगे तो उनके जो दरवाजे हैं, अर्ध गोलाकार जो दरवाजे हैं, वो दरवाजे जैन धर्म को घोषित करता है. और 60 फीट ऊंचा जो मिनारा है वो क्रिश्चियन धर्म को दर्शाता है. और उससे सबसे ऊपर जो कलश दिया हुआ है वो हिंदू धर्म का प्रतीक है. और गोल गुंबज जो बना हुआ है वो इस्लाम को घोषित करता है. और उसके ऊपर शंकु आकार का एक जो दिया है वो आपका बौद्ध धर्म को प्रसारित करता है. तो इस प्रकार से हमारे जो 5 धर्म है, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, इस्लाम धर्म और जैन धर्म को मिला करके ये हमारा जो दक्षिणामूर्ति मंदिर बनाया गया है, ये दुनिया के तमाम मंदिरों में, भारत के तमाम मंदिरों के अंदर एक अनोखा प्रकार का मंदिर है. यहाँ पे हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं और जैन लोग भी आते हैं. तो इस प्रकार से आइए मैं आपको दिखाता हूँ इस मंदिर की जो विशेषता है. इस प्रकार से आप देख रहे हैं ये जो दरवाजे हैं ये जैन धर्म को प्रसारित करता है. और आगे ये जो गुम्बज बना हुआ है ये इस्लाम धर्म को घोषित करता है. और उसके ऊपर जो गुम्बज दिया हुआ है ये बौद्ध धर्म को डिपिक्ट करता है. आगे वो 60 फीट ऊंचा जो मिनारा है वो क्रिश्चियन धर्म को दर्शाता है. और उससे ऊपर सबसे ऊपर जो दिया हुआ है वो हिंदू धर्म को घोषित करता है, कलश जो उसके ऊपर लगा हुआ है. तो ये जो स्मारक है वैसे देखा जाए तो जो ईएमई है ये हमारा कोर ऑफ ईएमई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, ये जो आपका 15 अप्रैल 1963 के अंदर इसका यहाँ स्थापना हुआ था. और इससे पहले ये ईएमई जो है ब्रिटिशर की छावनी यहाँ हुआ करती थी. तो ब्रिटिशर्स जाने के बाद में यहाँ पर ईएमई ने टेक ओवर किया. तो उससे पहले आप देखेंगे बड़ौदा का जो इतिहास है 228 साल हमारे 3 बड़े बड़े महाराजा आए. सबसे पहले जो पिलाजी राव गायकवाड़ 1, फिर फतेह सिंह गायकवाड़ 2 और इसके बाद तीसरा आया आपका जो राजा यहाँ फतेह सिंह राव गायकवाड़ के बाद में फिर आए श्रीमंत गोपाल राव और चौथा जो राजा आया वो प्रताप राव गायकवाड़. तो इस प्रकार से 228 साल के इतिहास के अंदर हमारे बड़ौदा शहर ने एक दुनिया को एक अलग प्रकार का नॉलेज सिटी दिया है. ये कल्चरल सिटी है. तो
तो इसके अनुसार देखा जाए तो बड़ौदा का सबसे विशेष महत्व है। इसलिए यहाँ पे हमारे ईएमई कोर का जो एक ज्ञान रूपी मंदिर बनाया गया है, जहाँ पे भारतवर्ष से हमारे अधिकारीगण आते हैं, जेसीओ साहिबान आते हैं, जवान आते हैं और यहाँ पे ये पूरी पढ़ाई करते हैं। इसके अलावा इसकी विशेषता हमारा कोर ऑफ ईएमई, आपके दिमाग में आए कि ईएमई का काम क्या है। तो ईएमई का काम है डिजाइन करना, डेवलपमेंट करना और ट्रायल करना, इंस्पेक्शन करना और रिफिट ऑफ वेपन एंड इक्विपमेंट ये इनका मुख्य काम है। इसके अलावा जितनी भी आर्मी की यूनिट है उनको टेक्निकल कवर प्रोवाइड करना और साथ ही साथ रिकवरी कवर, जब लड़ाई के दौरान या पीस एरिया में कोई भी व्हीकल ब्रेकडाउन हो जाता है, कोई गन ब्रेकडाउन हो जाती है, कोई हथियार ब्रेकडाउन हो जाता है, तो उनको रिकवरी करने का काम जो है वो ईएमई का है। तो इस प्रकार से यहाँ ईएमई ने इस बड़ौदा शहर के लिए जब भी आपदा आई, चाहे वो बाढ़ आई हो, तूफान हो, हर तूफान में, बाढ़ में हमारी ईएमई ने बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। और साथ ही साथ हमारा शहर का एक नाम है कि यहाँ पे हमारी आर्मी है, तो यहाँ कोई उग्रवाद या किसी भी आने की कोई हिम्मत नहीं होती है। જી, જેવી રીતે આજે ઈએમઈ સર્કલ ખાતે એક નવું ને જે સ્મારક બનાવવામાં આવ્યું છે, જે જૂનું હતું તેનું આજે લોકાર્પણ, નવું બનાવીને તેનું લોકાર્પણ કરાયું છે, જીર્ણોદ્ધાર કરવામાં આવ્યું છે। એ તમામ ઈએમઈના ઉચ્ચ અધિકારીઓની ઉપસ્થિતિમાં એનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું। એક સુંદર આર્મીનું જે સ્કલ્પચર છે તે વડોદરા ખાતે બનાવવામાં આવ્યું। કેમેરામેન રાહુલ કપ્તાન સાથે પાર્થ માલુસરે, સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ, વડોદરા।